लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था एंड इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. फर्स्टली, protein is the linear sequence of amino acid. It is the linear sequence of amino acid रेसिड्यूज. अमीनो एसिड्स के रेसिड्यूज होते हैं जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं एक लीनियर सीक्वेंस में एंड बाय a particular bond which is known as peptide bond, or you can say it is a polypeptide chain of amino acid residues arranged in a linear sequence which determines the three-dimensional structure or configuration of protein. Protein is a linear sequence of amino acid residues which is linked by peptide bond and form a polypeptide chain which is responsible for the three-dimensional configuration of protein. What is the function of the structure of protein? अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे हमें क्या पता चलेगा? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि the structure of protein determines its function. उसके फंक्शन को क्या करता है, बताता है. It determines its function. All proteins contain the elements. कौन कौन से एलिमेंट होते हैं देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन and sulfur. So these are the main elements which are found in a protein structure. This is carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. Sometime phosphorus, iodine, and some traces of the metal like iron, copper, zinc and manganese etc. are also present in the structure of the protein. A protein may contain at least 20 different types of amino acids. 20 different types of amino acids से मिल करके बनता है प्रोटीन. एक ब्रॉड स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वी कैन फाइंड, suppose this is an amino acid and the first thing which found in an amino acid is amine group. At the second terminal, another terminal consists of carboxylic acid group. तो ये दो मेन चीजें हो गई. अमीनो एसिड, किसी भी अमीनो एसिड के पास ये दो चीजें जरूर होती हैं. पहला अमीन ग्रुप एंड दूसरा है
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और इसी के साथ साथ वन मोर थिंग इज द प्रेजेंस ऑफ साइड चेन और ग्रुप। ये जो साइड चेन होती है ये डिस्टिंक्टिव होती है। डिस्टिंक्टिव कहने का मतलब है कि हर अमीनो एसिड के लिए अलग साइड चेन या साइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो वी कैन से बैकबोन इज द सेम फॉर ऑल अमीनो एसिड। बैकबोन सबका सेम है, while their side chains differ. So these are the some general points about the structure of protein. Now we will see how many types of forms in which protein can occur. So there are 4 levels of organization in which a protein structure can be divided. The first one is primary structure, second is the secondary structure, third tertiary structure, and the fourth one is quaternary structure. So there are 4 levels in which a protein can occur. Primary structure, it is the most simple structure of the protein, and after this primary structure forms secondary structure, these secondary structure form tertiary structure, and final quaternary structure is formed. So these are the 4 different levels of organization of the protein structure. So we will discuss one by one. The first is the primary structure. Make a heading of primary structure of protein. Simply it consists of the amino acid sequence along the polypeptide chain. सिंपल अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं. Amino acids are, these amino acids are joined by peptide bond. The bond in between two amino acid is known as peptide bond. And the charges on a polypeptide chain, जो polypeptide chain बन रही है उसमें जो चार्ज प्रेजेंट है वो किसकी वजह से है. शुरू में ही आप लोगों को अभी हमने बताया था 3 बातों पर डिपेंड करता है. पहला, प्रेजेंस ऑफ अमीनो ग्रुप या इसे कहते हैं एंड टर्मिनल. द सेकेंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विच इज नोन एज C terminal, and the third one is side chain. So these 3 amino group, carboxylic acid group and side chain determines the charge on a polypeptide chain. The primary structure determines the
further level of organization of the protein structure. तो आप ये कह सकते हैं कि the primary structure is the basic structure of the protein. यहीं से प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें सारे अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन के अलाउंग अरेंज होते हैं. नाउ आई एम मेकिंग अ डायग्राम हियर. देखिए आप लोग भी. लाइसिन, वैलिन, सिस्टीन, एलेनिन, arginine, histidine. These are the certain amino acids. Leucine, alanine, arginine, glutamine. तो ये सब एक दूसरे से क्या है? These are the certain amino acids and they are joined by peptide bond. एक एंड पे प्रेजेंट रहेगा अमीन ग्रुप, यानी कि ऐसे, और सेकेंड अनदर एंड पे रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. तो इट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. नाउ व्हाट इज द secondary structure? Now make a heading secondary structure of the protein. It includes various local conformation कुछ लोकल कन्फर्मेशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से द एटम्स ऑफ द साइड चेन, जो साइड चेन में एटम्स हैं, एटम्स ऑफ द side chains are not involved. साइड चेन्स में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एंड दे आर फॉर्म्ड बाय regular repeating pattern of hydrogen bond which is formed between the backbone atoms. बैकबोन में जो एटम्स प्रेजेंट हैं, बैकबोन कहने का मतलब है कि वही सी टर्मिनल और एन टर्मिनल, उनके बीच में पाया जाता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड. प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पर नहीं दिख रहा था. तो the secondary structure of the protein can occur in two forms. The first one is known as alpha helix, and the second form is known as beta helix. Alpha helix and beta helix. तो ये दो फॉर्म में secondary structure can occur. Now we will discuss about the alpha helix. Actually it is the right-handed coiled strand. right-handed coiled strand होती है, और the side chain of the amino acid group
साइड चेन ऑफ द अमीनो एसिड ग्रुप, अमीनो एसिड ग्रुप में जो साइड चेन प्रेजेंट है, इट एक्सटेंड टुवर्ड्स आउटसाइड, बाहर की तरफ होता है, आउटसाइड। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अमीनो ग्रुप में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द अमीनो हाइड्रोजन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीजन ऑफ द protein. This is called as alpha helix. Now I am making a diagram of alpha helix, form of the secondary structure of protein. नॉर्मली अगर हम देखें तो अल्फा हेलिक्स कुछ इस तरह से दिखता है। टेलीफोन का जैसे कॉर्ड होता है, बिल्कुल उसी तरह से दिखाई देता है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम एक्सटेंड करके देखें तो देखिए, बना रहे हैं यहाँ पे, आप लोग भी साथ साथ में बनाते चलिए। एच जुड़ा है, डबल बॉन्ड ओ, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो O है वो जुड़ा रहेगा अमीनो ग्रुप के हाइड्रोजन से। यहां पर बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड आई एम शोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद द डॉटेड लाइंस। O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये हाइड्रोजन किसका है? अमीनो ग्रुप का है, N से जुड़ा हुआ है, और ये फिर से इस तरह से बैकबोन बना लीजिए। एक R जुड़ा रहेगा, एक H जुड़ा रहेगा। इस कार्बन के पास ये देखिए ऐसे, अब फिर ये क्या करेगा, जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन से। किसके हाइड्रोजन से? अमीनो ग्रुप के हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा। तो इस तरह से ये बनेगा C, एक तरफ R और एक तरफ H। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स इज द, यहां पर कुछ हम मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं अल्फा हेलिक्स के बारे में। इट इज अ टेलीफोन कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज हेल्ड इन अ प्लेस। स्टेबिलिटी के लिए यहां पर कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। विच इज हेल्ड इन अ प्लेस by formation of hydrogen bond between हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है? बिटवीन नाइट्रोजन का जो H है और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ऑक्सीजन है, इसके और इसके बीच में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। Hydrogen bonds between every NH group and the oxygen of a carboxylic acid group in the next turn of the helix, 4 amino acids down the chain. हर 4 अमीनो एसिड के बाद एक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और a typical alpha helix is about 11
अमीनो एसिड लॉन्ग। तो ये था अल्फा हेलिक्स के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं। इसको जब आप बनाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, इस तरह से। इसी को हमने ऐसे यहां पर बनाया हुआ है। नाउ अबाउट बीटा स्ट्रक्चर, बीटा हेलिक्स। Make a heading: the secondary structure of beta helix. हाइड्रोजन बॉन्ड की यहां पर जो पोजीशन होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी बनता है, बीटा हेलिक्स में भी, बट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अ बीटा शीट इज बिटवीन स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड्स के बीच में बनता है। बीटा शीट में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दे मे बी पैरेलल और दे मे बी एंटी पैरेलल। तो उन्हीं दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में क्या बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इट कंटेन्स टू पैरेलल स्ट्रैंड which are lying side by side. पेयर्स ऑफ स्ट्रैंड होते हैं, दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं। तो एक स्ट्रैंड में, अब यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे दो स्ट्रैंड है, तो एक स्ट्रैंड में अमीनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन है और दूसरे स्ट्रैंड में कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ऑक्सीजन है, तो इसके बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। इसीलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन बिटवीन स्ट्रैंड्स इन द बीटा हेलिक्स ऑफ द प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। The carbonyl oxygen in one strand hydrogen bonded with amino hydrogen of the adjacent strands, and the two strands can be either parallel or they may be anti-parallel। पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। किस बात पे डिपेंड करते हैं कि दे मे बी पैरेलल और एंटी पैरेलल? इट इज द पोजीशन ऑफ N टर्मिनल एंड C टर्मिनल। N टर्मिनल और C टर्मिनल की पोजीशन पर डिपेंडेंट होते हैं कि दे मे बी पैरेलल और मे बी एंटी पैरेलल। द एंटी पैरेलल बीटा शीट्स आर मोर स्टेबल। ये ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पैरेलल स्ट्रैंड। एक्चुअली इसका रीजन क्या है कि ये एंटी पैरेलल वाला ज्यादा स्टेबल होता है? इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो अलाइनमेंट है वो क्या होती है? लीनियर होती है। एंड ड्यू टू दिस रीजन द एंटी पैरेलल beta helix of the secondary structure of protein is more stable as compared to